بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ محترم دوستو، مرزا جونیئر جیلمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، انجینئر صاحب۔ انجینئر صاحب نے ڈرامہ یہ رچایا تھا کہ مرزا سینئر قادیانی کی طرز کے اوپر ایک مذہب اور ایک کلٹ بنانا چاہا اس نے، اور بڑی کوشش کی بندے نے، جناب ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ جناب بڑی کوشش کی اس نے، بڑی کوشش کی۔ اب دیکھیے ذرا، میں تھوڑا سا آپ کو، چونکہ آپ لوگوں کو چیزیں تو یاد رہتی نہیں ہیں، مجھے یاد دلانی پڑتی ہیں، اور وہ بار بار پھر میں رپیٹ کرتا ہوں وہ چیزیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بڑی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگایا کہ مسلمان آپس میں تتر بتر ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، ان کے عقائد و نظریات بکھر جائیں، اور سابقہ جو عقائد اور نظریات کے اوپر یہ چلتے آ رہے تھے اس سے ہٹ جائیں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی، یہ بڑے مرزا جی کی بات کر رہا ہے، اس نے بڑی کوشش کی۔ اب ابتدا کے اندر تو کچھ لوگ اس کے ورگلانے کے اوپر اس کے قائل ہو گئے، اس کے فالوور بن گئے مرزا سینئر قادیانی کے۔ اب ایک دم ہوا یہ کہ جناب مرزا سینئر قادیانی کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ کیونکہ بولے والے تھے کئی مسلمان، وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا جناب اسلام دشمن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بڑے مرزا جی کی بات تھی، چھوٹے مرزا جی کی طرف آپ آتے ہیں۔ لنک میں نے شیئر کر دی ہے، اس لنک پر کلک کر کے آج کی ہماری گفتگو میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ ہوا یہی کہ جناب کچھ بولے بالے مسلمان اس کے بہکاوے میں آگے مرزا جونیئر جیلمی کے، اور طریقہ واردات اس کا بھی یہی تھا کہ اسلام کو کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، اور جو 1400 سال کے نظریات اور عقائد کے حامل ہیں یہ مسلمان، ان سے یہ جناب روگردانی اختیار کریں۔ تو جو یعنی بڑے مرزا جی نے کیا، اور جو اس کے نظریہ تھا اسی نظریے کے اوپر یہ آگے بڑھا۔ اب اس کے مرزا جونیئر کے بھی کچھ لوگ فالوور ہو گئے، لیکن ایک دم پھر اب وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ دہراتی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہوا وہی ہے جو مرزا سینئر کے ساتھ ہوا تھا، مرزا جونیئر کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ اس کے فالورز نے، اس کے مریدین نے، اس کے شاگردوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور جو چوٹی کے اس کے بڑے بڑے جو مرید تھے، مریض تھے، پیشنٹ تھے، شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، فالور تھے، تو علی بھائی کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جناب پتہ گرا ہے اماد الاسلام کا، اماد الاسلام کا پتہ گرا، اور اس کی ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر لانچ کر دی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، اس کی تفصیلات آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ گرا جناب، اس نے تو اس کو چنڈی کروا دی، خیر بیر کہہ دیا، اور کہہ دیا باقاعدہ اعلان کر دیا یہ ملحد ہے، یہ بندہ ملحد، یعنی ملحد جو کسی بھی دین مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی خدا کا قائل نہیں ہوتا، ملحد۔
तो इमादुल इस्लाम साहब की बात कर रहा हूँ। तो इमादुल इस्लाम साहब ने अब एक और पत्ता गिर गया जी, आइए जी ये लें, ये वीडियो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। हम्माद चीमा मरज़ई जो है उसने भी जनाब मिर्ज़ा जूनियर के ऊपर लानत कर दी है। और ये जनाब आज की ताज़ा तरीन खबर है, इंतहाई तवज्जो के साथ वीडियो समाप्त कीजिए। जैसे कि सब जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब, बल्कि मैं अभी ये दोबारा करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि जो शेयर ऑडियो, स्क्रीन की शेयर ऑडियो है वो भी करनी होती है, मैं भूल जाता हूँ। तो अब आवाज़ आपके सामने क्लियर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सब जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब मेरे उस्ताद हैं, लेकिन अली भाई से ही मैंने सीखा है कि इख्तिलाफ किसी भी शख्स को करता है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई भी शख्स ऐसा नहीं इस दुनिया में नबी वसल्लम के बाद जिससे किसी मामले में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ ना हो सकता हो। सब जानते हैं कि अली भाई जो है अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वो मौला अली अलैहिस्सलाम के फज़ाइल बयान कर रहे थे। और हाँ, वो अली भाई जो है अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, ये तुम्हें किसने बता दिया है? ड्रामा है वो। तो वो असल में उसने राफजियों को खुश करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन राफजियों को भी चूना लगा गया है। राफजी चूंकि वो ड्रामा करते हैं कि अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, हालांकि कत्ले हुसैन के अंदर सबसे बड़ा किरदार ही इनका था, तो इन्होंने किया। तो वो जो करबला का मार्का हुआ था और 10 मुहर्रम को। अच्छा जी, तो बहरहाल इसके ऊपर भी स्ट्रीम हम करेंगे तमाम दलाइल के साथ इंशाअल्लाह। तो राफसियों को इसने खुश करने के लिए बड़ा जनाब, कभी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर सबो शतम कर रहा है, कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के ऊपर सबो शतम कर रहा है। तो बड़ा उसने खुश किया, लेकिन नहीं, वो जनाब चूना लगा गया राफसियों को भी। तो उसके भी दलाइल बड़े बिखरे पड़े हैं, और वो तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक को जनाब उनको सबो शतम करता है मिर्जा जूनियर जेलमी। हाँ, वो तो माफ ही नहीं करता। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम, उनको भी उसने जनाब कितनी कितनी वो बकवासात की हैं। कुछ किसी सहाबी को, और सहाबी को तो फिर बड़ी दूर की बात, किसी नबी तक को उसने नहीं छोड़ा, माफ ही नहीं किया। हाँ जी, अल्लाह तक को माफ नहीं किया मिर्जा जूनियर जेलमी ने। ये हमारे चीमे को अब ये बातें समझ आई हैं, हम तो एक अरसे का बोल रहे हैं। हाँ, ये तो इसको अब समझ आई है। और ये है भी जाहिल मरज़ई हमाद चीमा, इसको तो पता ही कख नहीं है। तो वो भी एक बात इसको अब समझ आई है इसकी खोपड़ी में। तो नहीं जी, अब वो अली भाई तुम तो भगोड़े हो, अली भाई तुम तो भगोड़े हो बहुत बड़े हैं। तो वो अली भाई अब भगोड़े तुम्हें नजर आए, अब नजर आए हैं। वो कब के जनाब मुफ्ती अली नवाज साहब, मुफ्ती राशिद साहब, हाँ जी, रिजवी और खादम अर्ज कर रहा है, उस वक्त में कोई समझ ही नहीं आई है। तो तेरी अब दुम पे आया पाँव, तो तूने उसको छोड़ दी है। तेरी असल में दुम पे पाँव आया है, तुझे उसने पैसे पुसे नहीं दिए जिन पैसों के लिए रखा था उसने तुझे। हाँ, तो वो नहीं मिले। तो अब जी अली भाई मैं तुमसे इख्तलाफ करता हूँ अली भाई। सुनिए जी आगे फज़ाइल में उन्होंने एक ज़ईफ रवायत बयान की, जैसे कि सुन्नत में सहाबा कराम के फज़ाइल में ज़ईफ रवायत बयान की जा सकती है। वो मुस्नद अहमद की 1, 2, 3 हदीस है, वो रवायत है तो ज़ईफ है। उसमें उन्होंने बयान किया कि हज़रत अली। अच्छा, ये भी मैं जरा अर्ज करता चलूं, ये वो क्या इंग्लिश में डेडिकेट बोलते हैं, डेडिकेट किसी को कोई पेश करता है। तो ये पूरी वीडियो आज की ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जनाब हमारे बड़े प्यारे इब्राहिम जमाल शाह साहब, ये इन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई है और ये वीडियो का लिंक भी शेयर किया। तो ये डेडिकेट कर रहा हूँ जनाब शाह साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शाहों की खैर, सादात की खैर। हाँ जी, अच्छा जी, आगे सुनिए से नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अम्मा आयशा से झगड़ा होगा, तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं जो है जालिम होऊंगा। आपसे फरमाया नहीं तुम नहीं, तो लेकिन आयशा होगी। ये आप में हदीस में ये अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन अली भाई ने ये बोल दिए। लेकिन
जब लोगों ने ये हाईलाइट किया कि अली भाई आपने ये गलत कर दिया है, जो बात उसमें नहीं लिखी आपने क्यों बोल दिया, अली भाई ने इसके ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड कराया कि अम्मा आयशा की तौहीन हराम है और शिया सुन्नी के लिए दावत इस्लाह रखी। जब उन्होंने दावत इस्लाह रखी तो मैंने बड़े शौक से सुना। मैंने देखा कि आज जो अली भाई है ना शायद इस बात से रजू कर दें। अली भाई ने जो बयान किया, अबे अली भाई अब तो अली भाई कहना छोड़ दे, मिर्जा जूनियर कहा कर हमारी में मरजई, अब तो अभी भी अली भाई है, अभी भी अली भाई। अबे मिर्जा जूनियर बोल, तू डरता क्यों है? इतना तूने जिगरा कर लिया है एक अरसे के बाद है, वो अब तो तू मुर्तद हो चुका है मिर्जा जूनियर के नजदीक, क्योंकि उससे तुमने इर्तिदाद किया है, छोड़ दिया उसको। तो जो भी मरजइयों को छोड़ता है वो मुर्तद होता है। वड्डे मिर्जा जी को भी जिसने छोड़ा तो वो वड्डे मिर्जा जी के जो मरजई हैं उनके नजदीक वो मुर्तद है, तो छोटे मिर्जा जी को भी जो छोड़ेगा तो वो इनके नजदीक वो मुर्तद है। तो पहले तो वो मुर्तद बना इमादुल इस्लाम, अब दूजा तू मुर्तद है। हाँ जी, तो अब तो कम से कम मिर्जा जूनियर बोला कर उसको। उन्होंने वही दिखाया कि जो उन्होंने बोला है उसका मकसद यही बनता था। हदीस के हदीसों को उन्होंने हवाले दिए, वो सारा उन्होंने जो बताया, सब कुछ बताने के बाद उन्होंने साबित ये किया कि जो अल्फाज मैंने मुंह से बोले हैं बंदे वही थे। लेकिन अली भाई आपसे एक बहुत बड़ा गुजारिश है अभी भी, लेकिन वो अल्फाज तो नहीं लिखे। जब आपने इतना बड़ा क्लिप रिकॉर्ड कराया, सब कुछ करा के वजाहत दे दी। अच्छा ये मैसेज आ रहा है, पता नहीं ये इब्राहिम शाह साहब की आइडिया है भी कि नहीं। आई एम नॉट आस्किंग दैट, पता नहीं क्या है। पता नहीं, वो कह रहे हैं कि शायद नो आई एम नॉट, ये क्या लिख रहे हैं, वो कोई और इब्राहिम होंगे। चलो बहरहाल जो भी है, अब मुझे भी तो नहीं ना पता चलता यार ये के हैं माची माँ, हाँ माची में को कहो जरा। अच्छा एक मिनट, चलो मैं मैसेज कर देता हूँ जी। चीमा साहब मैं अभी लाइव हूँ, तो आजे आजे जल्दी, लिंक शेयर कर दिया आपको, इस लिंक पर क्लिक करके आप जल्दी जल्दी लाइव आ जाए, आजे आजे आजे। इलाने बरात कह रहा है किसने किया, मैसेज आया है उसका, कह रहा है इलाने बरात किसने किया, तो सामने आना पुत्र, सामने आ, तेरी मंजी ठोकना मैं। तो आप इतना कह रहे थे कि फिर भी अगर आप लोगों के इस वजह से दिल दुखे हैं तो मैं इस बात से रजू करता हूँ, उम्मत की माँ है अम्मा आयशा, आप उनके रूहानी बेटे हैं, तो बेटे को उसने कहा यही होना चाहिए कि यार ठीक है जो भी मामला हुए और जो भी हुआ वो ठीक था, लेकिन जो अल्फाज मैंने बोले बेशक उसका मतलब यही बनता था, लेकिन वो अल्फाज इसमें नहीं लिखे थे, मैंने बोल दी। अली भाई आपको एंड पे सारी वीडियो बनाने वाले पे कहना चाहिए था, फिर भी मैं इस बात से रजू करता हूँ अगर आप लोगों को, लेकिन आपने नहीं किया, तो मैं अभी फिर आपसे मौत पाना गुजारिश करता हूँ। ओए रजू दिया पुत्रा जाहला, रजू नहीं होता, तौबा और इस्तिगफार है। हाँ ये तौबा और इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी, इलानिया गुनाह की, इलानिया तौबा इस्तिगफार, माफी मांगनी पड़ेगी और वो गुनाह बताना पड़ेगा, ये गुनाह मैंने किया, इससे मैं अल्लाह पाक तौबा करता हूँ, अल्लाह माफी मांगता हूँ और अवाम से भी माफी मांगता हूँ कि जिनके सामने मैंने ये इतना बड़ा कुफर किया, इतनी बड़ी तौहीन की अम्मा आयशा सिद्दीका अम्मी उम्मुल मोमिनीन की रज़ी अल्लाह अन्हा की। हाँ रजू करता हूँ, चर्चिए पता है कख नहीं है, वो बड़ा भी है ना, करतूता नहीं, चोर चोरी तो जाए, हेरा फेरी तो ना जाए। नहीं आप इस बात से सो हल्का से रजू वाला बयान करा दें, हल्का सा हल्का है, हल्का ये बड़ी छोटी सी बात है जी, उम्मुल मोमिनीन की तौहीन कर दी, गुस्ताखी कर दी, हल्का सा एक बस रजू, हल्का सा, ये हल्का सा है। इससे आपका कद और बढ़ जाएगा, ये मेरा जाती ओपिनियन है। मैं ये अली भाई ने हेलो ओपिनियन पै गया जिथे भी जाती, हेलो जाती ओपिनियन आ गई ना, ओपिनियन जाती है, ओपिनियन जाती राय, यही ते सारा इन्होंने मजहब ही अपना राय से बनाया है। राय जो असी साडा दिमाग काम करता है पे, अपना दिमाग अपनी राय, राय राय का बस ये ड्रामा रचाया हुआ इन्होंने। ये दीन तो ना रहा, ये कुरान कुरान ना रहा, हदीस हदीस ना रही, जब तुमने सब कुछ इसको अपनी राय राय, मेरी जो अकल है मैं जो कहता हूँ ओपिनियन, ये जाती ओपिनियन आ गया जो जाती ओपिनियन।
क्योंकि शागिर्द वो उसका है ना, जाती ओपिनियन वाले का है, इल्मी किताबी। अच्छा मैं ऑडियो सुनाता हूँ, ऑडियो आई है इसकी माची में कि ये इसकी जरा बक बक जरा पूरी कर लूँ। आखिरी है कि मैं उनके साथ इख्तलाफ कर सकता हूँ, कोई भी अली स्टूडेंट अगर कह रहा है मैं गलत कह रहा हूँ तो ये आप लोग मुझे जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने ओपिनियन से बात की और अम्मा आयशा बहुत बड़ी है, अगर बनते थे अल्फाज लेकिन वो लिखे तो नहीं है ना, अली भाई ने बोले, अली भाई को चाहिए था कि जो बता बयान दिया है सारा कुछ ठीक है, उसके बाद कहते मतलब रजू करता हूँ, तो मैं अब फिर अली भाई से मुतमना गुजारिश करता हूँ, अली भाई इस बात से रजू कर दो। जज़ाकल्लाह। लो जी, तो जी अब कॉलर आए हैं, और इसकी पहले मैं कॉलर लेने से पहले ये ऑडियो एक सुना दूं, अल्लाह करे ये आवाज आप तक पहुंच जाए। मुफ्ती साहब, वो तज़किरतुल औलिया में जो उनकी बायज़ीद बुस्तामी की जो बात लिखी है कि मेरा झंडा नबी के वसल्लम के झंडे से बड़ा होगा, मैं कसम ये कहता हूँ, इसके ऊपर आपने कभी कोई अपने दलाइल नहीं दिए? हुमार साहब सवाल गंदुम जवाब चना है, बायज़ीद बुस्तामी की बात नहीं हो रही, जो आपने मिर्जा जूनियर जेलमी को वजाती ओपिनियन दी है उसके ऊपर मैं भी लाइव बैठा हूं, सामने आए, लिंक शेयर किया आपको। हाँ जी, लानत डाली है कि नहीं उसके ऊपर आपने? अगर तो आपने लानत अभी तक सही तरीके से नहीं डाली और वो तकिया कर रहे हैं, जो आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड की थी, उसकी एक कॉल रिकॉर्ड की थी मादुल इस्लाम की, कि तुमने तकिया किया है ना, दंदियां कट कट के तुम बता रहे थे उसे, हैं तो तुम भी फिर तकिया कर रहे हो वही राफियों की तरह। तो सामने आए बात करें, इधर डरते क्यों हैं आप? जल्दी आए, मैं बैठा हूं अभी लाइव, मगरिब की नमाज का भी वक्त है, फिर हमने निकलना है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक कर दिया हुआ है शेयर यार। ये लिंक आ गया। अच्छा अमीर हमजा साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? तबीयत भी ठीक है, सब ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र है जी। अमीर हमजा क्या फरमाएंगे आप? सादे मोहतरम, मैं तो सुन के ये सोनी जैसे लगा हुआ था, कभी ओपिनियन पा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, खीर ही कर रहा है बंदा ये। अच्छा तो ये आपका वो टाइम मिर्जा सीनियर की तरह कर रहा है अखीर मिर्जा सीनियर जैसे अखीर करता था ना, वैसे ही अखीर करता जा रहा है जी। उस्ताद मोहतरम, नीचे ना एक ये मर्दई आया हुआ है, इसको कॉल पे लें तो इसकी तरह मंजी ठोकें, ये कब से कमेंट्स में ना गंदी गालियां और बदतमीजी कर रहा है। कौन सा, क्या नाम है, किस नाम से? उस्ताद मोहतरम एक मिनट, ये है मो सलाह, MOSALAH। अच्छा चलें, ये इसको केक लगा देते हैं, बस ठुड्डा छितर मार के ब्लॉक कर दिए मैंने, बस इतना ही काम। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। अच्छा वो जो प्राउड इंडियन था वो आ जाएगा कि नहीं शाह साहब? पता नहीं जी आता कि नहीं आता, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, कोई भी है, जब भी है, कब भी है। अच्छा ये आज रात को माशाल्लाह आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, अभी तक इस पे बात नहीं हुई कोई, कि ये जो मर्दई हमाद चीमा ने जो की है, ये क्या आप क्या समझते हैं, क्या ड्रामा क्या हो रहा है, कहानी क्या हो रही है? चले गए जी। अमानत तारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। हेलो, आवाज उस्ताद मोहतरम आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा जी उस्ताद मोहतरम, आज मैं ना मिर्जा जूनियर जो है उसका ना क्लिप भी सुन रहा था, कल भी मैंने सुना था, रात को जो रात वो आया था एक हिंदू था जो उसकी गुफ्तगू भी मैं सुन रहा था। तो रात को मैंने काफी कोशिश की कि आप मुझे इस पे लाइन में लें, तो लेकिन वो मौका नहीं मिल सका। वो लानती जो उसको इतना समझा रहे थे आप लोग और सारे जो जो उसमें शरीक थे, लेकिन उस उल्लू के पट्टे कोई समझ नहीं आ रही थी। उससे ये सवाल करना था आपने, अगर वो आया तो उससे मुझे भी लीजिएगा उसमें से, कि जब बंदा मर जाता है तो जब मरने के बाद जो उसके साथ होता है वो साइंस क्यों नहीं बता सकती हमें?
سائنس اگر اس کو اتنا ہی اس کا علم ہے اس کا کہ سائنس نے یہ کر دیا, سائنس نے وہ کر دیا, کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ سائنس یہ کیوں نہیں بتاتی, حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امانت بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کو دلائل تو ہم نے بہت دیے, لیکن آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اس کو سائنس تک بھی نہیں آتی. قرآن دی تو وہ چونکہ کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, وہ یہ چیزیں تو آتی نہیں نا, اس کو سائنس تک بھی نہیں آتی. وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب بگ بینگ تھیوری کے متعلق اس سے سوال کیا کہ یہ کنسیپٹ کس کا تھا, سب سے پہلے یہ کس نے دیا تھا, وہ پتا نہیں, اس کو پتہ ہی ککھ نہیں تھا. پھر ہم نے حدیث پاک سے ثابت کیا وہ سارے یہ تھیوری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے, احادیث سے ہم نے ثابت کیا. بے شک بے شک. گزارش یہ ہے کہ بے شک سالم, یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں, عقل اکل ان میں کوئی ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات ایسے ہی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جی اگلے اور کالر بھی ہیں, مانت بھائی کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں, پھر میں کالر کو لے لوں. جی میں مرزا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مرزا جونیئر جو ہے, یہ اس کا میں لیکچر سن رہا تھا جو اس نے دیا ہے 1/8 کو, اسی مہینے کی نا 1 تاریخ کو. اس میں اتنی اس نے کی ہے نا, تو وہ میں اس کا لنک بھی آپ کو نا آپ کے واٹس ایپ میں سینڈ کروں گا, آپ میرے پاس ایڈ بھی ہے, لنک ضرور سینڈ کریے تو گا. اس کو ذرا سنیے گا ذرا, پھر اس پہ بات کیجیے گا ذرا. اس کا لنک سینڈ کر کے اور ٹائم لکھا کریں کہ اتنے ٹائم سے لے کے اتنے ٹائم پر اس نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹائم لکھنا ہے ایسے. جی استاد محترم ٹھیک ہے استاد محترم ٹھیک. ایک لنک جی شیئر ٹھیک ہے, کرنا میں ہے انشاءاللہ آپ کو کروں گا. جی میں کروں گا ضرور. جی. ایک تو لنک شیئر کیا کریں, دوسرا ٹائمنگ بتایا کریں, تیسرا یہ بتایا کریں اس میں کیا بات کی ہے. یہ آپ لوگ کیا کریں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اس کی بک بک سنتا رہوں بیٹھ کے, اتنی بڑی بڑی ویڈیو. تو بس آپ لوگوں میں سے جب کسی کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کوئی مجھے بتا دیتا ہے, توجہ دلا دیتا ہے, تو اس کے اوپر پھر میں اس کو غور و خوض کر کے اس کا سیاق اور سباق دیکھ کے تو اس پہ ویڈیو میں بناتا ہوں. ڈاکٹر سہیل صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے نیٹ کا ایشو ہے, آپ مجھے لگتا ہے جب بھی تشریف لائیں آپ کے ساتھ یہی ایشو ہوتا ہے, کوئی نیٹ کی ایشو ہے, آواز صحیح نہیں کلیئر آ رہی. نہیں, کوئی تگڑے والا نیٹ لیں, تگڑے والا کوئی موبائل رکھیں ڈاکٹر صاحب. نہیں, آواز نہیں صحیح آ رہی. اچھا جی, اگلے شاہد صاحب آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی سر میری؟ یہ آواز آ رہی ہے جی شاہد بھائی. جی جی میں اس پر یہ بات کروں گا, عماد السلام اور یہ حماد چیمہ. اچھا ایک منٹ, تو یہ آڈیو آئی ہے حماد چیمے کی, ذرا سن لیں. مفتی صاحب پھر آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نا, سوال گندم اور جواب چنا. میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ سے لائیو بات کرنی ہے؟ آپ مجھے بلا وجہ کہنے کہ تم نے لعنت ڈالی ہے یا نہیں, یہ تقیہ کر رہے ہو. تو پھر جو نبی کے وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں, بزرگ بے شک جتنا بڑی مرضی بزرگ ہو, جو نبی کے وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا, اس کے بارے میں آپ بھی تقیہ ہی کر رہے ہیں نا. چلو میں بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن جو عبارت لکھی ہے کم از کم اس کے بارے میں تقیہ کرنا تو چھوڑے, اس عبارت پہ تو بات کریں. جی چیمہ صاحب آپ لائیو کیوں نہیں آ رہے؟ لائیو آئے نا, ڈرتے کیوں ہیں؟ اور یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں. ہماری ویڈیوز تو آپ دیکھتے نہیں ہیں, نہ ہی مطلب یہ مفتی راشد صاحب کو آپ سنتے ہیں, نہ ہی مطلب یہ کہ آپ مفتی علی نواز صاحب کو سنتے ہیں. تو اپنی آپ لوگ ہنکے چلے جاتے ہیں, اگلے بندے کی سنتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ ہمیں سنتے ہوں تو آپ کو پھر پتا ہو کہ ہم نے ان چیزوں کو جوابات دے دی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی لائیو آئیے اور مجھے بتائیے. میری ابھی حالیہ 3-4 ویڈیوز آئی ہیں اس 1-2 دن کے اندر.
मिर्जा जूनियर जेल में वो कितनी कितनी बकवासात कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ये वीडियो आ गई है, अभी हालिया वीडियो के अंदर उसने कहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग्रेड था, दर्जा था, कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता था। आपका रुतबा मर्तबा कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता था। जबकि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफसर है। ये कुरान का फैसला नसे कती है। मुझे बताएं, अब मिर्जा जूनियर की बात माननी है या कि अल्लाह के कलाम की बात माननी है, कि अल्लाह की बात माननी है? बताइए। चलें, आपने लाइव तो आना नहीं, इधर ऑडियो के अंदर ही बता दें, मैं लोगों को ये आपकी ऑडियो सुना देता हूँ। जी शायर भाई। शाह जी मैं यही कहना चाहता था, सारे ये मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिकत कर रहा है, ये फैन फॉलोइंग का चक्कर है, और इन्होंने हमारी सफों में घुसना है, ये इनका नया पैंतरा है। तो क्या कर रहे हैं अब ये समझते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और वो सारे अब बड़ा मामला आगे चले गए हैं। अब आप झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है। अभी ये कह रहा है जी मैं उससे बात नहीं मैं उससे नहीं मानता, तो अभी तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा? यही कुछ हिमादत इस्लाम कह रहा था, और सारी ये इनकी नया इनका पैंतरा है। ये देख लें, मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है ताकि रिकॉर्डिंग पे आ जाए। हमाद चीमा जो मरदई है उसने ये ऑडियो सुन भी ली है। अब देखते हैं इसका ये जवाब आता है कि नहीं। तो ये लिंक भी, ये स्क्रीन यार्ड का आप देख रहे हैं, मैंने इसको शेयर किया है, समझ आई कि नहीं। और ये इमादुल इस्लाम के बाद हमाद चीमा भी मिर्जा जूनियर जेल में को छोड़ गया, ये लिंक भी। तो ये तमाम ऑडियो मैंने आपको सुना दी हैं। तो देखते हैं कि हमाद चीमा सामने आता है कि नहीं आता। ये सब वो शाहिद भाई ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं। ये मैंने तो पहले सिर्फ एक बात शादी, सिर्फ एक बात जब मैंने वीडियो बनाई ठीक है, थी, ठीक जब वीडियो बनाई थी इमादुल इस्लाम के बारे में, तो मैंने बता दिया था, मैं कहा ड्रामे हो रहे हैं, फिल्में हो रही हैं, फिल्में हो रही हैं, ये बड़ी बड़ी गेम हो रही है, और बड़े अपर लेवल की गेम। ये आम बंदों को तो समझ नहीं है, ये मौलवियों को हमें ही समझ आनी है, क्योंकि हम खुद यूट्यूबर हैं और हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हम जानते हैं इन सोशल मीडिया की कहानियों को और इन यूट्यूबरों को। मिर्जा जूनियर भी चूंकि यूट्यूबर है, जानते हम सब कहानियां जानते हैं कि हो क्या रहा है, गेम क्या हो रही है। तो ये तो पहले ही हमने बता दिया था, नतीजा पहले ही बता दिया था, आज फिर देख लिया आपने। और ये दो बंदे चोटी के मिर्जा जूनियर के फॉलोअर हैं, समझने के बकाया सब इनके नीचे, इमादुल इस्लाम और मरज़ई हमाद चीमा, ये दो बंदे। तो दो बंदे तो तिलक गए हैं ना बीच में से, ये अब पूरा टब्बर जाएगा, देखना ऐसा ऐसा ऐलान होंगे, देखिए जी शाहिद भाई। शाहिद भाई माइक म्यूट है। शाहिद भाई लगता है चले गए हैं। अच्छा जी, इब्राहिम शाह साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। शाह जी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी फरमाइए। अच्छा शाह जी, मैं जल्दी 3 नुकात पे बात करना चाहूंगा। पहली नुकता तो क्योंकि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बीच में लाई है, अब इन लोगों को क्या पता शाह जी कि सूरह नजम किस लिए अल्लाह ने उतारी, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबकुम वमा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। अब इन जाहिलों से हम पूछें कि कुव्वत नातिका क्या है, तो ये आगे से कह देते हैं बोलने की कुव्वत। इन जाहिलों को यही नहीं पता कि हवा क्या होती है। हमें आके बताएंगे कि रसूलुल्लाह की। अच्छा, दूसरी बात मुफ्ती साहब ये है कि खुदा ताला की वो जो जाते खुदा ताला ने मबूस की, जो इसमत कुबरा पर फायज है, ये तो उनकी तरफ इज्तिहादी खता और जुल्म और निस्यान की माज़अल्लाह कर देते हैं निस्बतें। तो ये आके इसको तो हमें बताएं कि ये चाहते क्या है। और तीसरी बात मुफ्ती साहब ये है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का मुस्तकिल फतवा है। 2010 में अगर किसी को चाहिए तो आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने अपनी निकाला हुआ था तेहरान से फतवा कि जो उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करता है वो बदतरीन काफिर है।
तो ये तो उम्मत मुस्लिमा के नजदीक मुतफक्का की है, जो हजरत उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन पे मैं अपने अल्फाज काफी कंट्रोल करके इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये यूज भी करते हैं बाद में, कि हजरत उम्महातुल मोमिनीन पर जो बात करे वो उसका ईमान ही शुबे में आ जाता है। तो ये तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल पर झूठ बात कर, और फिर जब हक वाज़े हो गया तो फिर इसी के अपने जो इसका स्टूडेंट है इसके नजदीक तो वो अड़ गया, रुजू तो वो कर सकता नहीं है। तो ये आके हमें देते हैं कि आप या ऐसे कर ले तो आप बदतमीजी करते हैं, तो आप बायजीद बुस्तामी के साथ छोड़ देते हैं। ये तो आके अपने मिर्जे को हमारे सामने क्लियर करके दिखाए ना जी। ये आप जिस खबीस को दिखा रहे हैं शाह जी, ये कुल्फा, ये भी तो नहीं आता ना जी सामने, उसी तरीके से ये भी नहीं आते सामने। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जज़ाकल्लाह जी। अगले दोस्त हैं साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी, ज़रूर क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरमाइए, सब खैरियत है हुजूर? अल्लाह पाक सोने दा बड़ा फजल ते बाबियां दी ये नजरे करम है, बाबियां दी पुष्ट पनाई है। साकिब भाई आवाज कट रही है, कोई नेट का इशू हो गया है, आवाज नहीं आ रही। लिंक मैंने शेयर कर दिया, कोई कॉल करना चाहते हैं तो कर लें। जब आप कॉल करें तो अपने नेट का खसूसी ख्याल रखा करें, नेट आपका अच्छा होना चाहिए, नेट की स्पीड। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब आई है, अब जी। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, ये मसला ये है कि ये कहता है ना मैं बाबी, ना मैं साबी, नाम नहीं आ रही आपके। तो उसके अंदर जहाँ किताबी का लफ्ज पर जी, आवाज मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरा तो नेट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज बीच में नहीं समझ, ये पूरा जुमला जो बोल रहा है समझ नहीं आया। मैं जरूर ये अर्ज करना चाहता था कि ये अक्सर ये दावा करता है मैं ना वाबी ना बाबी ना ही किताब, मैं मुस्लिम हिसाबी किताबी। हाँ। आपके नेट का इशू है, नेट का इशू है। अमीर हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। शादी आ गया, मेरा नेट का इशू हो गया था मास्टर, तो तब दोबारा किया। मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, वो कहते हैं ना कन की ना लईदा कम जाना किधर है ते जा किधर रहा है, वो छड्डो कट्टे थल्ले जांदा खोते थल्ले, वो हिसाब इहदा हो रहा। शाह जी, मौजू केड़ा चल रहा है ते किथे जाके की ना लईदा है? मौजू मिर्जे दा चल रहा है तो बाई अजीज साहब दा जा। बात ये है कि वो पंजाबी च कहंदे ने तंद नहीं तानी बिगड़ी है, सुना है आपने कभी? जी सदर मोहतरम, आपकी आवाज कट रही है। तंद नहीं तानी बिगड़ी है, ये कभी सुने आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जब कपड़ा बन रहा होता है ना, तो उसके अंदर ब्रीक ब्रीक तारें होती हैं ऐसे ऐसे, तो वो उसकी एक तार जो होती है उसको तंद कहते हैं। तो जो पूरी तानी होती है, पूरी चादर जो तैयार हो रही होती है उसको तानी कहते हैं। वो कहता है एक तंद अगर एक उसका वो धागा खराब हो, टूट जाए, तो उसको तो चलो उसका तो कुछ कर लेंगे, अब पूरा चादर ही जब खराब हो जाए तो फिर अब क्या किया जाए? ये बड़े मिर्जा जी और उनकी जो कम्युनिटी है, और छोटे मिर्जा जी और उनकी जो कम्युनिटी है, बड़े मिर्जा जी का जो कल्ट है, छोटे मिर्जा जी का जो कल्ट है, सेम सेम है, बराबर है। तंद नहीं तानी है, ये पूरा कल्ट जो है ना ये बिगड़ गए। ये छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके छोटे तक, मिर्जे से लेके उसके फॉलोअर तक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बिगड़ा हुआ है, सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है, उसका हाल ही कोई नहीं। अब देखे, मानने के लिए, समझने के लिए या रजू के लिए एक चीज भी काफी है। एक 10,000 कितने 10,000 से ज्यादा अल्लाह की गुस्ताखियां, उसके रसूलों की गुस्ताखियां, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां, सहाबा की गुस्ताखियां, अहले बैत अतहार की गुस्ताखियां,
مولا علی مشکل کشا علی کی گستاخیاں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی گستاخیاں، حسنین کریمین کی گستاخیاں، امیر معاویہ کی گستاخیاں، ابو سفیان کی گستاخیاں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء کرام اور 1400 سال کے تمام مسلمانوں کی گستاخیاں، 10,000 کی لسٹ بنتی ہے، 10,000 جی کم نہیں ہے۔ جی، اور اس میں وہ جو مغیرہ والی جی چلیں بولیں آپ۔ یہ کس کی گستاخیوں کی بات کر رہا ہوں؟ وڈے مرزا مرزا جی، جونیئر کی، چھوٹے مرزا جی، وڈے مرزا جی اور چھوٹے مرزا جی دونوں کی بات کر، 10,000 سے ابو یہ گستاخیوں کی لسٹ ہے۔ نہ تو وڈے مرزا جی نے رجوع کیا توبہ کی، نہ ہی چھوٹے مرزا جی نے توبہ کی رجوع کی، بس کہانی برابر ہے، ایک کہانی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی امیر حمزہ بہت شکریہ، یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں۔ اور کچھ آپ نے فرمانا ہے؟ محترم جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے آپ۔ جزاک آگے شاکر رضا آئے ہیں، بلکہ بابر مہر صاحب، السلام علیکم۔ بابر مہر صاحب آپ، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سادہ محترم کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ سادہ محترم بہت سالوں سے آپ کو سن رہا ہوں، شاید آج سیکنڈ ٹائم آیا ہوں آن لائن، آپ سے آواز بات صحیح کرنے کے کلیئر نہیں لیے۔ آ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ہاں سادہ محترم، مجھے جو میری اپنی اوپینین ہے نا، یہ اماد الاسلام کے بارے میں، مرزا صاحب کے بارے میں، یہ کوئی نئی گیم کرنے لگے ہیں۔ اور اگر اماد الاسلام آ کے یہ کہتا کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کے ساتھ مل گیا اور اب میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، تو یہ بات ماننے میں آتی۔ وہ کہتا جی میں جہاد امت کے لیے گیا تھا اور جی اتنے سال یہ اس کے ساتھ رہا، اس کی معافی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں یہ کوئی بہت بڑا کام کرنے لگا مرزا، جس وجہ سے اس کے ساتھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، شاید یہ ڈر گئے ہیں، اور یا یہ کوئی پلاننگ ہے اس میں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شاید مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس میں شامل ہو، اس کی سازش میں، کیونکہ یہ اماد الاسلام کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اب صحیح بات تو اللہ جانتا ہے۔ گیم دیکھا، گیم سمجھ گئے نا بابر بھائی، آپ سمجھ گئے سب کچھ ہے کہ گیم، اور یہ گیم میں گیم ہے، اور یہ بہت بڑی گیم ہے، نہ سمجھ میں آنے والی گیم ہے، گیم ہو گئی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے رکھیں، آنکھیں چار رکھیں، ہو کیا رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں چار رکھنے کا وقت ہے۔ مرزا جونیئر، مرزا سینئر کے بارے میں بھی آنکھیں بند کی تھیں، تو آج دیکھ لیں یہ فتنہ 125 سال سے زیادہ اور درد سر بنا ہوا ہے مسلمانوں کی۔ تو مرزا جونیئر کے بارے میں بھی آگے اگر آنکھیں چار نہ کی تو اگلے 125 سال کے بعد یہ وڈے مرزا جی سے بھی بڑا فتنہ نمودار ہوگا۔ فتنہ تو نمودار بہرحال ہو چکا ہے۔ تو چلو بہرحال یہ شاکر بھائی موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی شاکر بھائی۔ عرض یہ کر رہا تھا، آپ کی ماشاءاللہ ویڈیو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے، آپ قادیانوں کا رد کرتے ہیں۔ حضرت یہ فتنے کب تک آئیں گے؟ یہ قادیانی ہر کوئی نہ کوئی آپ آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو نبی کہنے لگتا ہے، تو یہ مطلب یہ کذاب کب تک آئیں گے؟ میں ابھی ولی اللہ نہیں بنا، جب ولی اللہ بنوں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کب تک یہ، کیونکہ دلوں کے اسرار اور دماغوں کے اسرار سے واقفیت اللہ کے بندوں کو ہوتی ہے، تو میرے پاس تو نہیں ہے کم۔ وہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، دجال یہ فتنہ جو ہوگا جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میرے خیال سے۔ ہاں وہ دیکھیں نا، مرزا سینئر بھی تو آیا نا،
तो वो भी अपने एक पंजे गाड़ चुका है, जी तो वो भी मशीयत इलाहिया के तहत सब कुछ हुआ ना। तो अब ये आया, ये भी अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, गाड़े नहीं है, कोशिश कर रहा है। तो अगर अल्लाह की मशीयत हुई, कोई मुसलमानों को उसने इम्तहान में डालना मकसूद हुआ तो होगा, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा, मुख्तलिफ ज़राए से मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा, ठीक है। तो वो तो वाज़े तौर पे फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समराती व बश्शिरिस साबिरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 155 के अंदर। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और कुछ भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना उन सबर वालों को। ये तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ है। तो ये आजमाना है उसने, ये आजमाइशें, ये वो दज्जाल भी क्या आजमाइश है ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब खुद अंदाजा कीजिए, खुद अंदाजा कीजिए कि वो एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोजख रखेगा, मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा भाई। जी बेशक। ये कोई सुनी सुनाई अनोखी कोई बातें, को कहानियां जैसे मिर्जा जूनियर कहता है कहानी, ये कहानी कुनी नहीं होगी। जी जी। मुर्दे को जब जिंदा करके ऐसे दिखाए, दाढ़ी भी उसने रखी होगी, पग भी बांधी होगी, हाँ, लोग उसको बड़ा सूफी समझेंगे, लेकिन उसके ऊपर ईमान ले आएंगे कई जिनको समझ नहीं होगी, जिनको समझ नहीं होगी, जो इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो सारे उसके हाथ पे ईमान ले आएंगे। वो क्योंकि वो साइंस के घोड़े दौड़ाएंगे, तो गूगल के घोड़े दौड़ाएंगे हैं। जिस तरीके से मिर्जा जूनियर ने इनको बताया कि गूगल ही सब कुछ है और ये साइंस ही सब कुछ है, और ये ज़ाहरियत ही सब कुछ है, ज़ाहरी तौर पे जो तुम चीज देखते हो उस पे बस ईमान लो, वो ही सब कुछ है। इसका जो बातन है, रूहानियत है, गैब है, उस पर नहीं, वो कुछ भी नहीं। ये बड़े मिर्जा जी का भी यही कॉन्सेप्ट है, छोटे मिर्जा जी का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो गुजारिश ये है, शाकिर भाई लगता है मिस हो गए हैं। तो बात ये कर रहा था मैं कि दज्जाल को देख करके और उसके करतब देख करके कौन होगा यार। अब वो बात यहां पे ये है कि जिनको तो पता होगा, जिनके इल्म और नॉलेज में होगा कि हजरत ईसा इब्ने मरियम तशरीफ ला चुके हैं, इमाम महदी के पीछे वो नमाज पढ़ चुके हैं, और उनको पता था, वो हदीसें उनके सामने थी, उनको पता है कि दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के करीब दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख के ईसा इब्ने मरियम नाज़िल हो चुके हैं। वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, वो दुनिया के जिस कोने में भी होगा उसको पता चल जाएगा कि ईसा आ चुके हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम मेहदी पहचान कर लेंगे, तवाफ करते हुए जो वक़्त के उलमा होंगे वो पहचान कर लेंगे ये इमाम मेहदी। तो इमाम मेहदी की भी पहचान होगी, ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल हो चुका, अब नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। इमाम मेहदी आगे होंगे, वो इमाम होंगे, और ईसा इब्ने मरियम पीछे खड़े होंगे। अब ये नमाज, अच्छा, ये सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, पता चल जाएगा ये हो चुका है। अब ये अलामतें जब पाई जाएंगी तो ये दज्जाल के ये करतब होंगे। इस असना में जब कोई शख्स उठ के दाढ़ी रख के पग बांध के जन्नत को एक हाथ में घूम रहा है लेके, दूसरे हाथ में जहन्नम लेके घूम रहा है, तो क्या लोग नहीं पहचानेंगे साहिबे इल्म, क्योंकि उनको पता है ये दज्जाल है। वो चाहे मुर्दों को जिंदा कर करके दिखाए, चाहे वो हवा में उड़ के दिखाए, वो कहेंगे ये दज्जाल है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादक नबी गैब अदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले गैब की खबर इरशाद फरमाई थी। मुस्लिम शरीफ की मुफस्सल हदीस है, वो साहिबाने इल्म को पता होगा। हाँ, वो बहकावे में आएंगे नहीं,
جو جوہلا ہوں گے, جو ڈاکٹر ہوں گے, پروفیسر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, سائنسدان ہوں گے, وہ بہت جلدی بہکاوے میں آ جائیں گے. جی جی صحیح سمجھ فرمایا. آئی کہ نہیں؟ شاکر بھائی آپ کا نیٹ کٹ گیا تھا تو اس لیے, تو اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جی یہ جی بات, یہ بات امید ہے کہ میں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر. تو جی جی اللہ پاک ایسے فتنوں سے بچائے. یہ فتنے ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جی جی اچھا, بے پھر شک. میں نے دجال کی بات اس لیے شروع کی تھی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تو ایسے برسنے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستی ہیں, اور ایسے فتنے. لیکن مجھے سب سے زیادہ جس فتنے کا اپنی امت سے خوف ہے, ڈر ہے, وہ دجال کا فتنہ. پتہ چلا کہ یہ سارے فتنے, مرزا سینئر کا فتنہ, مرزا جونیئر کا فتنہ اور دیگر فتنے, جوید غامدی کا فتنہ, سر سید احمد خان کا فتنہ, غلام احمد پرویز کا فتنہ, یہ چکڑالوی, یہ نجدی فتنہ, یہ رافضی فتنہ, یہ سب فتن یہ چھوٹے فتن ہیں دجال کے فتنے کے سامنے. ابھی تو بڑا فتنہ آنے والا ہے, اس کے لیے تیاری کیجیے. یہ چھوٹے فتنے ہیں. آپ دیکھیں نا یار, کون ہوگا کہ جو داڑھی کو دیکھ کے, پگ کو دیکھ کے, وہ قرآن ہاتھ میں ایسے ایسے دکھائے, حدیثیں دکھائے. ہاں جی, یہ مرزیوں کا قرآن ہے, مرزیوں کی لکھی ہوئی, یہ بھی مرزیوں کا قرآن. اتنے قرآن کی تفسیریں اور ترجمے اور حدیث کی بخاری اور مسلم کی شروحات اور ترجمے مرزیوں کے, وہ قرآن اور حدیث ہاتھ میں رکھتے ہیں ایسے. یہ دیکھو قرآن, یہ دیکھو, بتائیے. پھر وہ پگ داڑھی کو دیکھ کے, اور پیچھے کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے, کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور یہ سارے کلمے دیکھ کے جناب کون ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ لوگ جھوٹے ہیں؟ اور بہکاوے میں وہی آئیں گے. بہکاوے میں میں نے آپ کو بتا دیا, جوہلا آئیں گے. پڑھے لکھے علماء ان بہکاموں میں نہیں آتے. وہ دیکھیں, یہ داڑھی ہے, پگ ہے, کلمہ بھی لکھ کے دکھاتے ہیں یہ لوگ کیا مسلمان ہوتے ہیں. یہی کام یہاں پر بھی ہے. یہ داڑھی بھی ہے, پگ بھی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. چھوٹے مرزا جی نے بڑے مرزا جی کی طرح. کون بندہ ہے یار جو یہ اس گیٹ اپ کو دیکھ کے اور اس طریقہ واردات کو دیکھ کے وہ شش اور پنج کا شکار نہ ہو, وہ مضطرب نہ ہو جائے. وہ کہ یار میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس کو فیصلہ کرنے میں دقت ہوگی کہ یہ بڑے مرزا جی والے سچے ہیں یا چھوٹے مرزا جی والے سچے ہیں یا یہ مسلمان سچے ہیں, یہ مسلم سکالرز سچے ہیں, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سچے ہیں, علامہ خادم صاحب رضوی یہ مسلمان, پیر الیاس ستار قادری یہ مسلمانوں کی بات کر, مفتی منیب الرحمان یہ مسلمانوں کی بات کر. تو یہ لوگ سچا ہے, یہ طبقہ سچا ہے کہ مرزا جونیئر سچا ہے یا مرزا سینئر سچا ہے. پگیں انہوں نے بھی باندھ دی ہیں, انہوں نے بھی داڑیاں انہوں نے بھی رکھی, انہوں نے بھی. تو قرآن یہ بھی پیش کرتے, قرآن وہ بھی, حدیث یہ بھی پیش کرتے, حدیث وہ بھی. یہ ہے آزمائش, یہ ہے امتحان. اور کوئی بات کریں گے آپ شاکر بھائی؟ چلیں بھائی, شاکر بھائی کی حاضری لگ گئی ہے. میرے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے اور گھڑی کے اوپر بھی میری نظر ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, کالر نیچے کافی بیٹھے ہیں, تھوڑا ٹائم لیں. ٹھیک ہے جی. تو اسد بھائی آتے ہیں, بلکہ ذیشان شاہ صاحب, ڈاکٹر ذیشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ محترم, ایک شخص کمنٹ باکس میں آیا ہے پرائیویٹ چیٹ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس نے آئی ڈی بنائی ہے اور اتنی غلیظ بات کر رہا ہے. میں اس کو یہاں پہ بول رہا ہوں کہ اگر تو سچ میں اپنے مرزا کے ماننے والا ہے نا, جس طریقے سے تو نے الفاظ لکھے ہیں, تو سامنے اسکرین پر آ. پہلی چیز سر استاذ محترم میں بول رہا ہوں. دوسری چیز, کل وہ جو عبد القادر ملہم آیا تھا جو آپ نے, او بھائی جی ٹھہر تو جائیں, کون ہے نام تو بتائیں, کون سی آئی ڈی؟ ایسوں کو تو میں چھتر لگا کے بلاک کرتا ہوں. آپ صرف نظر کر کے جلدی جلدی آگے گزریں, ایسے نہ کریں. کون ہے بکواسیہ, مجھے بتائیں, میں اس کو بلاک کروں.
जी उस्ताद मोहतरम, वो प्राइवेट चैट में आया था और उसने जो आईडी बनाई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसने आईडी बनाई है बदबख्त ने। प्राइवेट चैट में तो कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा मोहम्मद। अच्छा सही है, ठीक है। तो ठीक है, बात कीजिए। जी कल वो जो अब्दुल खादर मुल्हम आया था, आपने जो नहानी लफ्ज के जो मायने बताए थे, ठीक है, आपने फिरोजुल लुगात के मुताबिक बताए थे, लेकिन वो शख्स इस चीज को मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने आपको झूठा बोला। जब मैंने उसके सामने वो हवाला निकाल के रखा फिरोजुल लुगात का, जो आपने जो मायने बताए थे सेम अल्फाज वही फिरोजुल लुगात के अंदर लिखे हुए थे। फिर दूसरी चीज, वो रजूलियत के ऊपर जब बात हुई तो उसने कहा कि रजूलियत के मायने रजल दूसरा मायने होते हैं, क्योंकि उसकी अरबी और उर्दू का मयार यहीं से समझ में आ गया। फिर उसने मयार बनाया कि मुझे फिरोजुल लुगात से दिखाओ, फिर उसको फिरोजुल लुगात से दिखाया गया। बाद में जब उसको कुछ भी उसके सर पैर के कोई उसकी बात समझ में नहीं आया तो सर पैर की बात करके इधर उधर खिसक गया। तो ऐसे लोग जिनका इल्मी मयार इतना इतना लो लेवल का है और वो अपने आप को मुल्हम कहते हैं, अपने आप को इल्हाम, जो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि इल्हाम ही हूं मैं, मुझे इल्हाम होता है, ऐसे लोगों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? क्या किया जाए ऐसे लोगों का? मेरा एक ही नजरिया, जाहिल हो जाते हैं, पता ही कख नहीं है इनको। ये सारे मिर्जा सीनियर है, मिर्जा जूनियर है, ये नबूवत के दावेदार, ये एथीएस, ये दैरिये, इनका कोई दीन मजहब है ही नहीं। दैरिये ये लोग, दैरिये, ठीक है। तो अभी आपने जैसे एक मिसाल दी कि आईडी उसने बनाई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की और वो बकवास कर रहा है, ठीक है। वो कुरान पेश करके बकवास कर रहा है, हदीस पेश करके बकवास कर रहा है। यही है भाई, ये कमेंटों पे ना जाएं। हकीकी दुनिया, रियल दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है कि वो अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूँ, दाढ़ी रखी है, पग बांधी है, वो कहता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कुरान हाथ में रखेगा, हदीस हाथ में रखेगा, बात इस्लाम मुखालफ करेगा, कि उसी कुरान को पेश करके इस्लाम की तनकीस करेगा, उसी हदीस को पेश करके इस्लाम की तनकीस करेगा। बस इतनी बात है। ये चलता आ रहा है, बड़ी देर से चलता है। ये अब की नई कोई कहानी नहीं है, ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये हर दौर के अंदर हुआ है, हर सदी के अंदर हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी हुआ। असवद अंसी उठता है, मुसैलमा कज़्ज़ाब उठता है। आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दाढ़ी रखी, पग बांधी है, और तारीख की किताबों में लिखा बड़ा नूरानी चेहरा था उसका। और उसका तरीका वारदात ये था, कुरान हाथ में रखता था, हदीस हाथ में रखता था। लोगों को मजमा जब उसका होता था, कुरान सुनाता था, हदीस सुनाता था कि अल्लाह के नबी मोहम्मद ने ये फरमाया है। और उसका मजमा लाखों लाख का मजमा होता था। हाँ, बहुत से लोग उसके मुरीदीन हो गए, उसके फॉलोअर हो गए। लेकिन वो इस्लाम मुखालफ, आपको पता है, झूठा मुद्दई नबूवत था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लक़ब दिया, तू कज़्ज़ाब है। सब ने उसको मुसैलमा कज़्ज़ाब कहना शुरू कर दिया। ये कज़्ज़ाब का लक़ब दिया हुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हर दौर में हुआ है मेरे भाई। आप हिस्ट्री उठा के देखो, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले और जुब्बों वाले, कुब्बों वाले और पग्गों वाले और कुरान हाथ में लेने वाले, हदीस हाथ में लेने वाले आपको मिलेंगे। ये तारीख बड़ी बड़ी है। हाँ, ये हर दौर में हुआ है। और हर दौर के अंदर ही जब ये लोग खड़े हुए तो हक गो भी खड़े हुए। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हक गो भी खड़े हुए फिर नंगी तलवार बन के, हर दौर में, पहली सदी में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवीं, ये 14वीं में, 15वीं उलमा खड़े हो गए और इनके मद्दे मुकाबला आए, टकराए इनसे। अभी भी वो हो रहा है। मिर्जा सीनियर था, उसके मद्दे मुकाबल भी उलमा आए। मिर्जा जूनियर है, इसके मद्दे मुकाबल भी उलमा आके खड़े हो गए, एक दीवार खड़ी कर दी है। कोई एक आलम दीन भी उसकी हमायतकारी नहीं रहा। और इक्का दुक्का जिन्होंने हमायत की थी वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये देखें, हमाद चीमा मरज़ई और इमादुल इस्लाम, ये कल तक तो मरज़ई थे क्योंकि मिर्जे को मानते थे ना ये, तो मिर्जे को मानने वाला मरज़ई,
या निस्बती लगी। तो अब ये मरज़ई अब पता नहीं रहे हैं नहीं रहे, लेकिन इनकी जो वीडियोस हमें बता रही हैं कि ये इन्होंने इसको छोड़ दिया, लानत डाल दी। और ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट यानी अपर लेवल के, ये जो हमें 2 ही बंदे नजर आते थे, ये 2 ही बंदे बस, तीसरा मुझे बंदा आज तक नहीं कोई सोशल मीडिया पे नजर तो नहीं आया, अभी शायद कोई खड़ा हो जाए तो हो जाए। तो ये 2 बंदे थे और वही 2 बंदे उसको छोड़ के, ये गेम हो रही है, कहानियां हो रही है, बड़ा ड्रामे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जी उस्ताद मोहतरम एक आखिरी बात कि आपने जैसे कहा कि इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं वो सब इसके फरेब में आ जाएंगे, लेकिन कुछ चंद डॉक्टर और चंद इंजीनियर ऐसे हैं जो आपके साथ ताल्लुक रखते हैं और आपके शागिर्द हैं, तो उनको बहकाना इतना आसान काम नहीं है और इंशाअल्लाह ना कभी बहकेंगे और ना कभी इनके बहकावे में आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस यही है, हम पूरे जग को रोशन नहीं कर सकते भाई, नहीं पूरी दुनिया में जाके इस्लाम के डंके बजा सकते, बस जितना हमारा हम है अपने हिस्से का एक एक चिराग ना जलाएं, हम ना चलाएं, बस एक एक चिराग जलाना है बस। ये एक छोटी सी स्ट्रीम 2000 बंदे मैं बिठा के उनका अकीदा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही काम है। हाँ बस इतने काम है, हमारा काम इतना ही है भाई। कोई माने ना माने, कोई आए ना आए, कोई लोटे ना लोटे, किसी दिल के कुफल टूटे ना टूटे, मोहरें टूटे ना टूटे, क्योंकि मोहरें अल्लाह ने लगाई हैं, खत्म अल्लाह बोला कलूबे, तो वो मोहर है वो फिर अल्लाह को पता है। तो हम अपने हिस्से का काम कर, ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हर एक अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। शैतान ने अपने हिस्से का काम करना है और रहमान वालों ने अपने हिस्से का काम करना। सुभान, अपने अपने काम है। बाबा जी आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी कल आपकी वो स्ट्रीम देखी थी और वो जो मरज़ई हैं वो बार बार एक ही बात का वो क्या कहते हैं रोना रोते हैं कि जो हम मुसलमान हैं वो उनके साथ जो है ना हम इखलाक वाली बात नहीं करते, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। तो शाह जी मैं यहाँ पर एक हदीस मुबारक लेके आना चाहता हूँ कि जो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्या स्टैंस लिया था ये मुसलमा कज़ाब के जो कासिद थे उनके लिए, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी हदीस मुबारक की। मैंने स्क्रीन शेयर किया, अच्छा जी ये जी। तो ये है सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2761। तो यहाँ पर सैयदना नईम बिन मसूद अशजई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के 2 एलचियों से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कज़्ज़ाब का ख़त पढ़ा कि तुम दोनों इसके बारे में क्या कहते हो? इन्होंने कहा हम वही कहते हैं जो उसने कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर ये बात ना होती कि सफ़ीर और कासिदों को कत्ल नहीं किया जाता तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़त्म नबूवत का जो मामला है वो किस तरह हसास है, किस तरह का हसासियत रखता है ये। और ये जो कादियानी आके कहते हैं कि हम उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो हम बदतमीज़ी करेंगे ना कि देखो तुम लोगों ने किसको जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ला के रख दिया है। कौन है मिर्ज़ा कादियानी? कौन है? बदतरीन इखलाक वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका मारने वाला। तो हम भी वही सख्ती अपनाएंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के 2 एलचियों के साथ सख्ती की थी। जी शाह जी। बिल्कुल जी, सख्ती तो करनी है ना जी, सख्ती तो करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मोमिन है इनकी सिफ्त ये है कि अशिद्दाउल अल कुफार, ये काफरों के ऊपर बड़े शदीद होते हैं, सख्त होते हैं। सख्ती तो करनी है और सख्ती बनती भी है। वो तो बेईमान है कि जो अल्लाह की तौहीन देख के, रसूल की तौहीन देख के, सहाबा की तौहीन देख के, औलिया अल्लाह की तौहीन देख के तो चुप रहे और आगे से कहे नहीं मेरा ओपिनियन है मेरा ओपिनियन। और बे ऐसे ओपिनियन की कोई जगह नहीं है यहाँ पर भाई इस्लाम के अंदर। हाँ
दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। यहाँ पर ओपिनियन छोड़ दे, वो यहाँ चक्कर ही कोई नहीं ओपिनियन का। यहाँ तो सिर्फ नंगी तलवार बन के रहो, या अल्लाह वाले बन जाओ या अल्लाह को छोड़ दो, फिर बस दरमियान की कोई राह नहीं है, मुनाफिकत की कोई राह नहीं है। हाँ तो बस यही मसला है और कोई नहीं है बाबा जी। अच्छा जी बाबा जी चले गए हैं। ये क्या है, गुलाम मदनी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, कैसे हैं शाह जी? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप अच्छा शाह जी, मैं थोड़ी सी बात करूंगा मिर्ज़ा जूनियर के बारे में। कल मैंने इसकी एक वीडियो देखी है, वो ऐसे ही यूट्यूब पे जैसे सर्चिंग होती रहती है तो वो आ गई थी। ज़्यादातर ये ऐसे दीनी चैनल्स देखता हूँ तो फिर उसमें उसका भी आ जाता है। तो उसका क्या था कि एक हिंदू था, उसने एक सवाल किया है सूरह अंबिया की आयत 29 के ऊपर। तो जब मिर्ज़ा जूनियर ने उसको जवाब देने के लिए वीडियो बनाई है तो फिर वो काउंटिंग वैसे ही की है उसने, जैसे आप बार बार कहते हैं ना कि कादियानियों की आयत 30 है और मुसलमानों की 29 है। तो मिर्ज़ा जूनियर सेम टू सेम वैसे बोला, जी मैं ये आयत सूरह अंबिया की आयत 30 के बारे में बताऊंगा। तो फिर एकदम से मेरा ध्यान गया कि शाह जी सही कहते हैं कि इसमें जरासीम क्या ये पूरे का पूरा कादियानी ही है। यार गुलाम मदनी मैंने उस दिन स्ट्रीम नहीं की, मुफस्सल स्ट्रीम की है। ये जो कुरान पाक की तफसीर ये करता है, कुरान पाक की तफसीर के नाम से क्लास, तफसीर क्लास नंबर फलां फलां फलां, तो मैंने वो दलाइल के जरिए साबित किया कि वो तर्जुमा भी और तफसीर भी सेम कादियानियों की होती है। मैंने वो खोल खोल के तफसीरें भी दिखाई, तर्जुमे भी दिखाए और आपको बताया। वो मेरी स्ट्रीम अभी भी मौजूद है, 2-2.5 घंटे की स्ट्रीम की है, दलाइल के अंबार लगा दिए हम, है नी कि भाई ये मर्ज़ियों की तर्जुमे और तफसीर, ये मर्ज़ियों की है। ये जानी खलीफा जो था वड्डा बशीरा, ये उसकी तफसीर है। ये होती है। अच्छा ये होती है ये कादियानी मर्ज़ियों का कुरान करीम। मिर्ज़ा ताहिर ये दूसरा जानी खलीफा है। ये होते तर्जुमा भी यही, तफसीर भी यही। भाई ये मर्ज़ियों के तर्जुमे और तफसीरें लोगों को पता ही नहीं है ये गेम क्या हो रही है, कहानी क्या हो रही है, क्योंकि उन तक मर्ज़ई किताबों की रसाई नहीं है, उनको पता ही कख नहीं है। तमाम तरीका वारदात इसका वो मर्ज़ियों से इसने सेटअप लिया है, मिर्ज़ा कादियानी से इसने सेटअप लिया है और ये अपनी दुकान खोल के आ गया है। इमादुल इस्लाम साहब भी लगता है तशरीफ लाए हैं। कह रहे हैं कल 3 बजे, पता नहीं कल 3 बजे क्या होगा। तो इमादुल इस्लाम साहब हमाद चीमा भी वो आ गया है मैदान में, तो लगता है उसने भी लानत कर दी है मिर्ज़ा जूनियर को छोड़ दी है। तो आप अपनी राय दें, लाइव कॉल कीजिए। तो जी गुलाम मदनी आप बात। अच्छा शाह जी, इसका सेम टू सेम वही है जो आप कहते हैं ना, जैसे मिर्ज़ा सीनियर अपनी हर बात में सुन्नी शिया, तो ये तफसीर बयान कर रहा है या इससे कोई भी सवाल कोई भी करता है किसी भी चीज़ के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, ये बीच में सुन्नी शिया बरेलवी लाजिम ही आएगा। ये सरूर साहब हैं कोई 22, वो कह रहे हैं शाह जी एक वीडियो शाह शिया के इमाम हुसैन के कत्ल पर वीडियो जरूर बनाए। यार मुझे ना रोमन नहीं पढ़ी जाती, मैंने कितनी दफा कहा उर्दू लिखा करें। रोमन ये इंग्लिश रोमन उर्दू रोमन समझ ही नहीं आती। ये लिखा है शाह जी एक वीडियो, ये लिखा है शाह जी एक वीडियो। आप लोग मुर्गा लिखते हैं, मुझे मुर्दा समझ आती है हैं? तो गुजारा ये है कि इससे जान छुड़ाएं, रोमन से उर्दू। आप हमारी कौमी जुबान है, पाकिस्तानी हम कौमी जुबान है यार उर्दू, तो इसको आप फरोग दें। हाँ उर्दू को फरोग दें, उर्दू कमेंट किया करें। ये रोमन शोमन से समझ ही कख नहीं आती बदगला। और दूजी इंग्लिश तो मैनू आती नहीं ना, वो तो इतने फस जाती है।
तो इंग्लिश वाले कमेंट वैसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे क्या पता उसने हमें दुआएं दी हैं कि या बददुआएं दी हैं, कोई गालियां निकाली हैं। हमें जब समझ ही नहीं आई तो हम डिलीट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हाँ बस इतनी बात। तो करेंगे जी करेंगे, अभी मुहर्रम शरीफ का महीना है, सब कुछ करेंगे, स्ट्रीम करनी है, इसके ऊपर भी करनी है। इनकी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने हुसैन को हमने कत्ल किया है। हाँ मुल्ला बाकर मजलिसी ने वो खुद कहता है हाँ जी कातिलीने हुसैन हम ही हैं। तो बाद में हमने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया था, मातम करने शुरू कर दिया, हाय ये तो जुल्म हमने कर दिए। तो वो करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, इसके ऊपर दलाइल भी देंगे, हम सारे लेके आएंगे। तो वो अगली कहानी है। तो जी गुलाम अहमद इमादुल इस्लाम साहब की तशरीफ ले आए, उनको भी साथ ले लेते हैं। इमादुल इस्लाम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शादी खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह पाक का फजल है, बाबों की नजरे करम है मेरे ऊपर बड़ी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा गुजारिश ये थी कि आपने खबर पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी, हमाद चीमा मर्दई जी वो भी मुखालिफ हो गया है मिर्जा जूनियर जेलमी के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये शाह जी कि हमाद चीमा जो है, माफ़ी चाहता हूँ, दोगला आदमी है और मुनाफिकत कूट कूट के उसके अंदर भरी हुई है। मैं अपनी बात अर्ज़ दोबारा कर दूं कि मैं पहले भी अहले सुन्नत वल जमात देवबंद और मैं हक़ के साथ साथ अभी भी हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं तो मिर्ज़ा जूनियर साहब के पास इसलिए गया था उनकी इस्लाह के लिए। हमाद चीमा पक्का उनका जो है शागिर्द है, मगर उसने ये जान के तौरियतन ये ड्रामा किया है। असल में वो हर बात उनकी मानता है अंदर से, बाकी ज़ाहिर क्या है बातिन क्या है ये तो अल्लाह को पता है, मगर ये हमाद चीमा बहुत बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि हमाद चीमा को कि बाज आज अल्लाह से डर, ये काम ना कर। अगर तुमने छोड़ दिए मिर्ज़ा जूनियर को लाना डाली है तो खुल के बात कर। जी ओ वेल डन। बस मैं कहता हूँ आप ये बात बस आग लगा देगी, मर्ज़ियत को आग लगा देगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसके ऊपर इमाद भाई फिर भी आएंगे, हम स्ट्रीम करेंगे आज जी इंशाअल्लाह। इमादुल हमाद चीमे को मैं लाइव बुलाता रहा हूँ, मेरी ऑडियो तो वो सुनता जी है, जी जवाब दे रहा था लेकिन लाइव नहीं आ रहा था। और लाइव आए के भी नहीं, इनका बाप जो जी है, हाँ। इनका बड़ा वडेरा, वो हमारे सामने आने से डरता है, भागता है, हमारी काल काट देता है मिर्जा जूनियर जेल में अली भाई। मगर तो आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। जान होनी है, ये जाहिल के बच्चे इनको पता ही कर। ब्रेकिंग न्यूज़ जी शाह साहब आपकी इजाज़त है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ? जी जी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अली इंजीनियर जो फसादी साहब हैं वो मेरे साथ अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा 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 अच्छा, मुनाजरा करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी जी लेकिन जी जी ये मेरे मैं साथ। आपको, अच्छा आपके साथ, तो वो उनके साथ क्यों जी जी नहीं, वो मुफ्ती तारिक साहब के साथ क्यों नहीं? ये नहीं पता इनकी क्या है कि मैंने अब तैयार तो हो गया। मेरी चाहत ये है कि अगर मुनाजरा करना है तो लाइव वीडियो के साथ करें ताकि पूरी दुनिया देखे। हाय 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 हाय। अच्छा मुझे बीच मैंने में रख यही लीजिएगा, इनसे गुजारिश की है। मुझे बीच में रख लीजिएगा अगर मिर्जा बिल्कुल जूनियर। आप भी आएंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आएंगे, सारे आएंगे इंशाल्लाह वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले भाई। अच्छा मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। होगा लाइव, मेरे चैनल पे लाइव होगा? अब ये नहीं पता क्योंकि ये मैंने तो उनसे गुजारिश कर दी, आज उन्होंने खुद ही कह दी कि आपसे मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा कर लेना कि आप जी जी चैनल पर भी चलाएं, कोई मसला नहीं, बीच में मेरे चैनल को भी जी ऐड जी कर लेना। वो स्ट्रीम यार्ड के बिल्कुल बड़ी सूरत है कि भैया के वक्त आप 4 5 6 7 8 10 चैनल बिल्कुल कस्टमाइज कर, तो ये चलें जी। जी बेशक अच्छा ऐसे ही ये है। जो इन्होंने ये जो मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है आपका,
یہ انہوں نے کال جی کی جی تھی آپ کو، میسج کیا ہے، کیسے کال کی ہے؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے ان سے آج، تو آمنا سامنا ہوا ہے، تو کیونکہ میرا ایک ہی شہر ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے المحند المفند پر بات مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ مگر میں نے ان سے میری ان سے گزارش ہے کہ مجھ سے ویڈیو پر مناظرہ کریں تاکہ پوری دنیا دیکھے۔ جی ہاں، اچھا یہ بات، وہ کیا کہا اس نے؟ آگے سے دیکھیں اب کیا ان کا آ رہا ہے جواب، میں ان کے اچھا جواب کا آپ منتظر ہوں۔ ویڈیو آپ نے اسی ٹائم کو کیمرہ نکال کے موبائل کا تو ویڈیو ریکارڈ کر لینی تھی۔ بس وہ تو ہم ان کی طرح دوغلے کام نہیں کرتے نا، جو آڈیو انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی سارا جھوٹ کا پلندہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، تو میرے ساتھ میرے علماء ہیں، اللہ کے فضل سے متنفر نہیں ہوئے، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے والدین بھی اور آپ بھی، مگر میں نے انشاءاللہ یہی پیغام ان کو پہنچانا کہ ویڈیو کے ذریعے مناظرہ ہوگا تاکہ پوری دنیا دیکھے انشاءاللہ۔ ماتم اسلام صاحب، اگر بالمشافہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو تو کیا آپ میری سیٹنگ اس کے ساتھ کرا سکتے ہیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سنا ہے کہ مجھے ربی نے یہ کہا کہ اکیلے میں کوئی آئے تو میں بات کر لوں گا۔ اکیلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بغاوت کر رہا ہے، یہ اسلام دشمنی جو کر رہا ہے، اسلام مخالف باتیں کر رہا ہے، یہ تو ساری اس کی سوشل میڈیا پہ ساری دنیا کے سامنے ہے، تو مناظرہ چھپ کے جی ہاں، یہ تو میرا ہی سوال ہے کہ مناظرہ چھپ کے کیوں ہو؟ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ جی ہاں، توبہ ہے نا، ساری دنیا کے سامنے حقیقت آنی چاہیے نا۔ ابھی آپ ہی بے اپنے شک گھر میں بے بیٹھے شک، ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ غلام مدنی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہم 3 بندے یہاں ایسے پہ ہی لائیو ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہیں، تو ایسے ہی ایسے ہی مرزا جونیئر بھی آئے آمنے سامنے آ کے بات کرے ادھر لائیو۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے، یہ ہم تو پیغام کہتے ہیں آپ نے لائیو آئے۔ اب جب آپ کا آمنا سامنا ہو تو میرا نام لے کے وہ مجھے جی جی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہنا جی تو ہاں جی ہاں، مفتی شاہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا تیرا پیو، یہ میرا پیغام ہے، کہنا تیرا پیو مفتی بشر شاہ، وہ کہندا سی پیا کہ لائیو آ کے میرے نال مناظرہ تو کیوں نہیں کرتا، جی یہ جی جی میرا پیغام ہے نا، آپ نے میرے الفاظ اٹھا کے جی اس کے سامنے پیش کیے، جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اور یہ پیو انشاءاللہ۔ میں نے جو پیو بولا ہے، پیو جو بولا ہے اس کا، جی ہاں، یہ میری گندی اولاد ہے، گندی اولاد گندی بھی تو ہو سکتی ہے نا بیچ میں، اب اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اولاد گندی ہو سکتی جی ہے۔ جی جی صحیح اب وہ بات، دیکھیں نا، امیر معاویہ کی گندی اولاد یزید رضی بن، اللہ، جی جی ہاں جی جی رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں، جی جی اور جی یہ شرابی اور کبابی ہے، صحیح بات، گندے گندے صحیح تو بات، ہوتے ہیں نا، اچھوں میں صحیح برے، بات، بروں میں صحیح اچھے۔ بات، تو اچھا بہت شکریہ ماتم ایسے ہی اسلام کا، ٹائم میرے پاس کم بہت ہے، غلام بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحبان آپ کا، سننے دیکھنے والوں کا، اور آتے ہیں انشاءاللہ رات کو دوبارہ لائیو آئیں گے انشاءاللہ، ایک اور موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو یہاں پہ میں اعلان بھی کرتا چلوں کہ آج کلاس میں نے شروع کر دی ہے، تو اور بتا کے شروع کی ہے، بن بتائے نہیں شروع کی، 4 سال آن لائن درس نامی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، بہت سے طلباء اور طالبات خوش نصیب انہوں نے شرکت کی ہے، اور مزید کسی کو کوئی داخلہ چاہیے ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ داخلہ لے سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کریے گا کہ ہمیں داخلہ چاہیے تو آپ کو داخلہ انشاءاللہ ہم دے دیں۔ یہاں پر میں ڈسکلیمر بھی ایک دفعہ چلا دوں تو پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.